नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा ने एक बहुत ही अहम विधेयक पारित किया। वह था वक्फ संशोधन विधेयक 2011। इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए। सांसदों ने जहां एक और विधेयक का समर्थन किया, वहीं उसकी कुछ कमजोरियों को भी इंगित किया। अगले 2 एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वाद विवाद के प्रमुख अंश। Okay, now Sulaiman Khan to move. Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, sir. I have the honor to commend the Waqf Amendment Bill 2011 as reported by the Select Committee of Rajya Sabha for consideration of this August House. This bill was introduced in Lok Sabha on 27th April 2010 and passed by the House on 7th May 2010. Sir, Select Committee, they have incorporated several provisions in the bill which would prevent the misuse of Waqf properties and would lead to proper administration of Awqaf. The Prime Minister High Level Committee on Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, also known as Sachar Committee, suggested a number of amendments to the Act relating to women's representation, review of composition of the Central Waqf Council and the State Waqf Boards, and more effective approach to the countering encroachment, etc. The committee stressed the need for setting up a national Waqf Development Corporation at the central level and Waqf Development Corporation to facilitate proper utilization of the valuable Awqaf properties and achieve the objective for which they are intended. The Joint Parliamentary Committee on Waqf, the recommendation of cover a wide range of amendments relating to time-bound survey of Waqf properties, prevention and removal of encroachment, making the Central Waqf Council more effective, provision for development of Waqf properties. The amendments proposed were considered in the consultation with the other stakeholders like All India Muslim Personal Law Board, representative of the state governments and the chairman and chief executive officer of the state Waqf Board. The recommendation of the Select Committee have been examined in the ministry in consultation with the Ministry of Law and Justice, the states and the union territories, and the concerned ministries of the government of India were also consulted. A meeting was convened with all India Muslim Personal Law Board, CEOs and chairpersons of the state Waqf Board, members of the Central Waqf Council, and they discussed various issues relating to the proposed amendment to the Waqf Act 1995. Besides other amendments, sale and mortgage of Waqf properties were allowed under the exceptional circumstances which was approved by the Cabinet in its meeting held on 21/2/2013. Subsequently, further consultation were held with the various stakeholders. It was suggested to prohibit sale, gift, mortgage and exchange of Waqf properties, and the only lease of Waqf property should be allowed. The major amendments proposed and its benefit envisaged. Survey of the Awqaf, which has not been done in many states, would be completed within 1 year. The state government will appoint survey commissioner within 3 months. Penal action has been proposed against public servants who fail to preventing encroachment. The Central Waqf Council is considered to be a toothless body, is being empowered to issue directives to State Waqf Board on their performance, particularly on their financial performance, survey, maintenance of Waqf deed, revenue records and prevention of encroachment of Waqf properties. Now the State Waqf Board would be set up within the time period of 6 months. The provision of this act have overriding effect. Sir, I commend this bill for discussion to the House. Okay, thank you very much. Now Mukhtar Abbas Naqvi. उपसभापति महोदय, हम वक्फ की प्रॉपर्टीज के सुरक्षा, उसके उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जब हम इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें यह नहीं मालूम कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है मुल्क में। हमें यह नहीं मालूम कि कितनी प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट है। हमें यह नहीं मालूम कि किस वक्फ के बोर्ड में और उसके दफ्तर में कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। एक हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 2007 की रिकमेंडेशन कि इन तमाम प्रॉपर्टीज का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए 25 करोड़ रुपया कम से कम सभी जो 29 वक्फ बोर्ड हैं राज्यों में उनको दिया जाए और वो कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू करें। मैं अभी वो रिपोर्ट मेरे पास सामने है। उस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया कि जो जेपीसी ने
25 करोड़ कहा है वो तो संभव नहीं है, ठीक है हम 10 करोड़ दे देते हैं। उस 10 करोड़ में होना क्या है? प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, legislation of tackling management, document archive and archive management, GIS वक्फ प्रॉपर्टीज, फंड मैनेजमेंट ऑफ मॉस्क, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ाज एंड अदर्स, लोन मैनेजमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं उपसभापति महोदय, इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ की, जिन प्रॉपर्टीज के माध्यम से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहें, अगर हम रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहें, हम अगर सामाजिक तरक्की की दृष्टि से काम करना चाहें, तो उस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करके हम इस दिशा में काम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड कहां मिलेगा? रिकॉर्ड भैया, एक अकेला पंजाब स्टेट का वक्फ बोर्ड है जिसने की कुछ कंप्यूटराइजेशन की दिशा में काम किया है। उसमें जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कह रहा है वो नंबर अलग है, जो सरकार कह रही है वो नंबर अलग है। अपने आप में वो कंफ्यूजन और कंट्रडिक्शन है। जो आप कहते हैं इंक्रोचर, इनको कैसे हटाएंगे? जिस वक्फ बोर्ड के पास अपने ऑफिस पर रहने के लिए, अपने ऑफिस कार्यालय चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो इतने बड़े वक्फ माफियाओं के साथ किस तरह से भिड़ेगा, इसका कोई समाधान इसमें नहीं किया है। लिस्ट ऑफ द औकाफ, अब कुछ वक्फ ऐसे हैं जो कि लिस्टेड है, नो, कुछ ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं है। अब आपने जो है वो कहा कि साहब ऐसे इनके सारे रजिस्टर तैयार किए जाएं। क्या कोई ऐसा समय सीमा तय की गई है कि उसको इतने दिनों में, 5 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में only 4 minutes उसको नोटिफाई करें, उसको गजट करें, उसको प्रकाशित करें? और मैं चाहूंगा कि इसमें माननीय मंत्री जी जब इसको जो है वो रूल्स बनाएं तो उसमें कम से कम 30 दिन का समय सीमा रखें कि 30 दिन में जो भी वक्फ प्रॉपर्टी चाहे लीज पे जाती है, चाहे उसका नया रजिस्ट्रेशन होता है, वो उसका पब्लिकेशन 30 दिन के अंदर अखबारों में भी होगा और गजट में भी होगा। आपने इसमें एक क्लॉज रखा है, कोई ऑफिसर अगर जो है वो इग्नोर करता है, इंक्रोचमेंट को नहीं हटाता, तो आप कहते हैं कि जी उससे 15,000 रुपए का फाइन ले लिया जाएगा। अरे भैया, 15,000 रुपए अगर फाइन लगाएंगे तो वो तो उसके लिए तो और अच्छा है। उस वक्त की प्रॉपर्टी को वो बेचेगा या उसके रिकॉर्ड को ऐसी की तैसी कर देगा, आपको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, 15,000 रुपए वो फाइन भी दे देगा आराम से। उस फाइन को आप बढ़ाइए और फाइन के साथ साथ और भी सजा के प्रावधान करने चाहिए। सर, आप इस औकाफ की जब बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा कानून का जानकार मुसलमान नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो है वो हमने एक दूसरा प्रोविजन भी कर दिया कि कोई और ढूंढ के लगा लेना। भैया, इसका सरकार दुरुपयोग करेंगी और जो वक्फ बोर्ड की हालत है उससे और बद से बदतर होगी। 20B में आपने कहा है कि जो चेयरमैन इलेक्ट होगा, 1 साल तक कोई भी मेंबर या कोई भी सदस्य उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकता। पहली बात तो आप एक बात समझिए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज की लूट हुई है, वक्फ प्रॉपर्टीज जो बेच दी गई हैं, उसको किसी और गैरों ने नहीं किया है। ये सितम अपनों का ही है, ये उन्हीं वक्फ माफियाओं का है जो वक्फ बोर्ड पर कब्जा रखकर बैठे हुए थे। और आप कह रहे हैं कि फिर एक बार जब हम चेयरमैन बैठा लेंगे तो 1 साल तक कोई छू नहीं सकता, 1 साल में तो वो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए ये प्रोविजन एकदम हटना चाहिए और उसमें समय सीमा हटानी चाहिए, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक तो है ही और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि वक्फ के जो डिस्प्यूट हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। वो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। उस ट्रिब्यूनल के अधिकार और उसके अधिकार के बारे में, ट्रिब्यूनल के शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बातें आनी चाहिए। सर, पहले लीज जो है वक्फ प्रॉपर्टीज की 1 साल, 3 साल ऐसी थी। अभी इस कानून में 30 साल के लीज का प्रोविजन किया गया है। पहली बात तो जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कोई बिजनेस करने के लिए नहीं होती। उसे धर्मार्थ कहते हैं कि धार्मिक आस्था के साथ लोग जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी को अपने उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने उसके लीज का जो सीमा है वो बढ़ा दी, 30 साल कर दिया। अब 30 साल मतलब ये हुआ कि लीज मत कहिए, फिर आप कहिए कि हम बेच रहे हैं। हम उससे सहमत हैं। क्या आप जब कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
शॉपिंग सेंटर, मार्केट या रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है, वो उस तक तो ठीक चलता है कि भाई अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई बनाएगा या कोई भी संस्था जो वही वक्फ से रिलेटेड संस्था भी बनाएगी तो भी उसे कम से कम 30 साल की लीज चाहिए। लेकिन आप सभी पर यही लागू कर रहे हैं, तो आप जो वक्फ माफिया हैं उनको एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार देने जा रहे हैं। एक आपने कहा कि जो बोर्ड से संबंधित किसी तरह का जो है वो विवाद आएगा, उस विवाद का निपटारा उस राज्य की सरकार करेगी। लेकिन सर, आज आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वक्फ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ट्रिब्यूनल जो है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने वाले हैं, तो वो तय करेंगे। अब आप जो है वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कोई विवाद अगर बोर्ड से रिलेटेड संबंधित हुआ तो उसका अंतिम निपटारा राज्य की सरकार करेगी। यानी कि आपने फिर जो है वो राज्य की सरकार को एक तरह से वक्फ की नकेल थमा दी। अब मैं इसमें एक आपको थोड़ा शेर सुनाता हूं। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी। मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी। मेरी मिट्टी किसी झगड़े में न डाली जाए, बाल की खाल कभी और निकाली जाए। Thank you, Mr. Naqvi ji. Thank you. Professor Saifuddin Sos. Is a very landmark contribution of Government of India to help the Muslim community to protect its Waqf properties, which have been in disarray, which have been looted in this country before the very eyes of the members of the boards. We consulted Muslim Personal Board and Muslim Majlis Mushawarat and the Milli Council and the Shia associations. I am sure that we have done justice to all schools of thought in Muslim community in India. Definition of encroacher, अब उसमें include होगा public or private institutions in addition to persons. Now any public institution will be included. Government को compulsorily list maintain करना है औकाफ का, वक्फ के institutions का, और जो सर्वे है वो करना पड़ेगी। Second or subsequent survey has to be done after every 10 years. Status of Waqf properties already notified will not be reviewed in second and subsequent survey. Survey data will have to be entered in the land records by the revenue authorities. और सेंट्रल वक्फ को अब अथॉरिटी है कि वो मॉनिटर करेगी इन बोर्ड्स को। Waqf boards will have to be established within 6 months instead of 1 year from the commencement of the amendment. The representation to Shia community has been proposed in Waqf boards and the Central Waqf Council. CEO can now be taken on deputation from outside in the event of non-availability of a suitable Muslim officer in the state. अब सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम यह है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी को न सेल किया जा सकता है, न गिफ्ट दिया जा सकता है, न मॉर्गेज किया जा सकता है। तो बोर्ड इज बीइंग गिवन पावर टू डिटरमिन मार्केट रेंट, नॉट फेयर रेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, एंड एवरी मुतवली विल हैव टू प्रिपेयर एनुअल बजट। और 50,000 रुपए जहां वक्फ की आमदनी उससे ज्यादा जहां भी प्रॉपर्टी है उसका ऑडिट होगा। और किसी सूरत में मस्जिद को, दरगाह को, खानका को, ग्रेवयार्ड को या इमाम बाड़ा को तब्दील नहीं, बदले में नहीं दिया जा सकता। और इम्प्रिजनमेंट होगा 2 बरस का, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को एलिनेट करेगा, खाएगा, खुर्द-बुर्द करेगा। अगर कमर्शियल एक्टिविटी है 15 साल लीज होगा, अगर एजुकेशनल एक्टिविटी है तो उसके लिए 30 बरस को होगा। सेंट्रल वक्फ और बोर्ड्स की मीटिंग जो होगी वो 90 डेज के अंदर लाजिमी तौर होनी चाहिए, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो विल बी हेल्ड एवरी 120 डेज। वक्फ के दायरे में इविक्शन जो होगा वो मजिस्ट्रेट के हुक्म से ऐसा ही होगा इविक्शन जैसे सरकारी प्रॉपर्टी की होती है। और वक्फ का जो कानून बन गया, दूसरे कमांडेंट को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को, ये लॉ जो बन गया, इस लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा उसमें। और ये मैंने आपको 60-70 सिफारिशों में से कुछ बताए ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। लेकिन मुसलमान जिस परेशानी में था, आज मैं पूरी कौम की तरफ से उनको कहता हूं, तू ही नादां चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगे दामा भी था। शुक्रिया। Thank you very much.
राज्यसभा में विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने माना कि अब तक तमाम खामियां थी जिसको इस विधेयक के जरिए दूर करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वाद विवाद के प्रमुख अंश। मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जो इस मुल्क में तकरीबन 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है, छोटी बड़ी मिलाकर के, सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए कोई ऐसी स्कीम इस मुल्क में नहीं नाफिज किया जिसके चलते माफिया ने धीरे धीरे इसको कब्जा कर लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक 2013 पर हुई चर्चा में शामिल सांसदों ने माना कि देश के तमाम हिस्सों में वक्फ संपत्तियों की भारी लूट हुई है और सरकार को ऐसा फूल प्रूफ इंतजाम करना चाहिए कि दोबारा अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को लूटा ना जा सके। श्री सलीम अंसारी। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जो इस मुल्क में तकरीबन 5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है, छोटी बड़ी मिलाकर के, सरकार ने उन प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए कोई ऐसी स्कीम इस मुल्क में नहीं नाफिज किया जिसके चलते माफिया ने धीरे धीरे इसको कब्जा कर लिया। आज मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पे वक्फ की प्रॉपर्टी सरकारी दफातर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी उस मुस्लिम कौम को दे दी जाए, वक्फ के जो मैनेजमेंट के हैं लोग हैं उनको दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं इन वक्फ की प्रॉपर्टियों से इस मुल्क के रहने वाले 30 करोड़ मुसलमानों का उत्थान हो सकता है। जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, वहां मुल्क का सबसे बड़ा हमारा सूबा है। यहां सबसे ज्यादा हमारे नवाबों की वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। जो आज अमेंडमेंट बिल आया है, उस बिल में जो सेलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिया है, जेपीसी ने जो सुझाव दिया है, आज उसको जोड़ करके अगर आप एक मजबूत बिल ला रहे हैं तो हम उस बिल का स्वागत करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे उसका क्रियान्वयन भी मजबूती से होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के आइन में यह लिखा हुआ है कि मुस्लिम सीईओ होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको अधिकार नहीं है। और मैं देखता हूं कि सीईओ भी हमारे इस देश में मुस्लिम समाज के नहीं मिलते और दूसरे समाज के लोगों को उसमें रख दिया जाता है जो वक्फ के बारे में कुछ ABCD जानता ही नहीं। तो ऐसे लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों को क्या बचा सकते हैं? इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अलग से एक कोड बननी चाहिए। जो किराएदारी का कानून है वो बड़ा लचीला है। अक्सर मैं देखता हूं किराएदारी को मुकदमे में हमारे वक्फ बोर्ड हार जाते हैं और सब भूमाफिया उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो अलग से एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो कब्जा करते हैं उससे निजात मिल सके। Now Sri C.P. Narayanan. Deputy Chairman, I support the historic bill that has been introduced here. Now, I suggest certain things. One, in the earlier bill, in the earlier act, there was more democracy than in the present one, because in the boards in the state, majority of members were elected earlier. Now, in the new one, in the bill it is suggested majority will be nominated. I think that has to be changed. Second is the control of this land given to the tribunal. But in this tribunal, there are judicial members and non-judicial members. It is better to keep the tribunal as judicial, not to have other members in that, so that the government, the state government may be able to influence it. Now in this section 72, CEO is being given the powers. If you concentrate the powers in the CEO,
the members of the community from various parts of the state, whether it is UP or Kerala or whatever state, they may not be able to get their grievances redressed. So what I suggest is the divisional officers should be given powers as they enjoy now, so that Muslims at large who are in the various parts of the state, they may be able to get the services of the divisional officers. Now there is a good suggestion to take back the land which are being used by various interested parties, and it is suggested that the land will be given only on lease. Now if it is used for educational or health or other purposes, it will be useful for the community as a whole. But if it is given for business purposes, the usefulness will be limited to the individuals or the concerns which take the land. Then finally, what I have suggested is, here MPs and MLAs will become members of these bodies. This office of profit issue comes. So it is better to provide members who are nominated or elected to these committees. They don't, particularly elected members of parliament or members of legislative assemblies, if they have not to be victims of the provision of offices of profit, special mention and special safeguards for them may be made. Again, I support this bill which has been made historic. Thank you. Thank you, Mr. Narayanan. Sri Mohammad Nadimul Haq. काफिले से हटकर जो लूटा गया, क्या उसका गम, रोइए उस पे जो मीर कारवां के साथ है। आपने स्ट्रक्चर कमेटी की 76 में से 72 सिफारिशात मानी है और 4 ऐसे हैं जो आपको कबूल नहीं, जैसे वक़फ़ के लिए मखसूस ऑल इंडिया कैडर का क़याम, वक़फ़ सर्वे को हर रियासत में लाजमी या कंपलसरी बनाना, इस सर्वे में आज़ादी के बाद के सारे वक़फ़ मामलात को शामिल किया जाए, वक़फ़ सर्वे के कमिश्नर को म्यूटेशन करने का पावर दिया जाए, मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों को वक़फ़ बोर्ड में जगह दी जाए, नेशनल वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड बनाया जाए, काबिज़ों यानी कि एनक्रोचर्स से निपटने के लिए वक्फ बोर्ड के CEO को मजिस्ट्रियल पावर के बराबर अख्तियार दिया जाए, वक्फ इमलाक को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुस्तस्ना रखा जाए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट को वक्फ इमलाक के खाली कराने में भी इस्तेमाल किया जाए, वक्फ से मुतालिक सारे मामलात को 1 साल के अंदर अंदर हल किया जाए। मगरिब बंगाल में भी काफ़ी दिनों से वक्फ इमलाक की लूट जारी है। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त मुल्क में वाहिद रियासत है जहां वक्फ पर CBI इंक्वायरी हो रही है। आज CBI के तहत 15 से ज़्यादा केसेस हैं और उसके बाद CID के तहत भी 33 वक्फ इमलाक के केस ज़ेर तफ्तीश हैं। कुछ सजेशंस हैं कि बोर्ड को पावर होना चाहिए कि वो पुलिस को हिदायत दे और पुलिस उन हिदायत को मानने पर और कैरी आउट करने पर मजबूर हो। लीज की मुद्दत रीजनेबल हो और लीज मार्केट रेट पर हो, जहां जहां लीज की बात आती है। मुतवल्लियों की नुमाइंदगी पर आमदनी की शराइत ना हो। अभी ऐसा होता है कि भाई 1 लाख और ऊपर की आमदनी वाले वक़फ़ स्टेट को ही नुमाइंदगी मिलती है, उनके मुतवल्ली को मिलती है, उसके नीचे वाले को नहीं मिलती। बोर्ड की निगरानी के बगैर मुतवल्ली टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं कर सके। 66 साल बाद भी मुल्क के 5 लाख वक़फ़ जायदाद कह रहे हैं कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैं बस इतना ही सा कहना चाहूँगा कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। शुक्रिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2013 पर हुई चर्चा के दौरान सांसदों ने माना कि अभी भी वक्फ संपत्तियों को लेकर जो कानून आ रहा है उसमें कई तरह की कमियां हैं। मुस्लिम समुदाय ने ही वक्फ संपत्तियों को जुटाया है और सरकार का कर्तव्य बनता है कि इनकी हिफाजत की जाए। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सांसदों ने और क्या क्या चिंताएं व्यक्त की
क्या क्या संशोधन के सुझाव दिए और सरकार ने क्या जवाब दिया। कानून में अपील का अधिकार सिविल कोर्ट को दे दिया गया है। यह हमारे लिए बड़ा दर्द का पहलू है। हमारे मुकदमा 30-30 साल से पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि वक्फ अदालतों के कानून को सिर्फ वक्फ अदालत में ही चैलेंज किया जाए और उसके लिए कोर्ट अलग बनाया जाए।